Hello, very good morning students. How are you all? I hope all are good. Students, in the last videos we have solved questions till 44 and how many of you have solved questions? All the whatever questions are not done by me in the videos, यानी कि remaining questions except videos. वीडियो को छोड़ के जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो कितने लोगों ने कर लिए हैं? Write in the comment if you have solved all the questions. Okay. So let's move forward. Our today's topic for the class, that is issue of shares, question number 44, right? As already in from last two videos I'm telling you about the forfeiture of shares. So in this video also, purely based on forfeiture of shares questions we are going to solve. So A part is saying X Limited forfeited 500 shares of 100 each, 75 was called up, at 10% premium it was issued for the non-payment of 20 per share. ठीक है, out of these 200 shares were reissued as 75 paid up for 60 per share. बड़ी चीज़ें इसमें कह दी गई हैं. One thing is to this, that from 100 only 75 was called up. कितना called up हुआ? 75, right? 10% was the premium, so that was on allotment. Okay, so 10 रुपये प्रीमियम है, वो भी किस पे है? आपका अलॉटमेंट पे है. अब इट इज़ सेइंग फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर. तो जब 75 तक ही पेड अप है, यानी कि इंक्लूडिंग अलॉटमेंट टिल फर्स्ट कॉल इट इज़ कॉल्ड, आउट ऑफ विच 20 पर शेयर फर्स्ट कॉल वॉज नॉट कॉल्ड, तो कंपनी पेड ओनली 55 रुपीज़, सॉरी, शेयर होल्डर्स पेड ओनली 55 प्लस 10 रुपीज़ प्रीमियम, तो 65 रुपीज़ per shares were collected from 500 shares. So whatever money was collected, that will transfer to share forfeiture account. Then that 65 into 500 is our profit. Okay, so whenever these are reissued at 60 per share, 15 rupees per share is the loss on reissue. So what will happen? 15 into 200, 3000 will be lost, so it will be beta subtracted. Okay, is it clear? Now see, what will be the first entry? First of all, we have to forfeit all these shares ना. तो in that case share capital account debit, as I was telling you ना कि 500 शेयर्स थे, तो 500 शेयर से 65 रुपीज़ तक हमें मनी मिल गया था. ओके, 65 रुपीज़ तक. बट प्रॉब्लम इज दिस, दे आर नॉट मैंशन इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज ऑन अलॉटमेंट इन दिस क्वेश्चन. ध्यान से देखिए ज़रा. टू बी पेड ऑन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल. तो आइदर यू इग्नोर प्रीमियम और यू कैन यूज़ प्रीमियम. दो ऑप्शन है. अगर आप प्रीमियम को यूज़ करोगे तो आपको डेबिट में भी दिखाना होगा, और फिर यहाँ पे जो शेयर फॉरफीचर आया है इसमें भी आप दिखाओगे. और अगर आप उसको नहीं यूज़ कर रहे हो तो आपका ये अमाउंट भी फिर कम हो जाएगा. तो बेटर यही है, वेन एवर सिंपली इट्स गिवन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग द फॉरफीचर ऑफ शेयर, अगर खाली फॉरफीचर की एंट्री पास करा रहा है तो आप प्रीमियम को इग्नोर कर दीजिए. ओके, सो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट बेटा. 500 शेयर्स वर देयर. ओके, and 75 are called. So whenever we will multiply by 75, so it will be 5 5s are 25, 5 7s are 35, 37500. Okay, after that in the first call bete, first call was in arrear, so from 500 shares rupees 200 was not collected, so 10,000 will be here credited. Okay, after that how much was received? 55 into 500, तो 5 5 25, 5 5 25, 2 7 500. ठीक है, तो
37,500 आ जाएगा ये। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट एंट्री ऑफ नाउ फ्रॉम नाउ 500 शेयर्स, हाउ many are reissuing? Only 200 shares were reissued and that are reissued at 60 per share beta. So 12,000 will be received and how much is loss? 15 rupees, because 75 was called na, so we have to multiply by 15, 3,000. So in share capital it will be recorded as 15,000. Okay, after that now there is profit 27,500 on 500 शेयर्स। री इशू कितने हो रहे हैं? 200। सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू बेटा कि जितने शेयर री इशू होते हैं हमें उतने ही शेयर का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू नो अबाउट द प्रॉफिट ऑन 200 शेयर्स। सो 2750 इज द प्रॉफिट ऑफ 500 शेयर्स, सो डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 200, सो इट विल बी 11,000। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो 11,000 आएगा। एंड लेटर दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एंड लॉस ऑन रीइश्यू वाज 3,000, तो वी विल सब्ट्रैक्ट 3,000, देन वी विल गेट 8,000। हाउ मच? 8%। तो नाउ जर्नल एंट्री, व्हाट विल बी जर्नल एंट्री बेटा? इन जर्नल एंट्री यू विल पास शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट एंड फ्रॉम नोट यू कैन कैलकुलेट दिस अमाउंट। ओके, सो मैंने अभी वर्किंग नोट से किया है तो इसलिए वर्किंग नोट नंबर 1 आप लिख सकते हो, या इसको नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। ओके, सो डायरेक्टली यू पास दिस। नाउ बेटा कम टू बी पार्ट। बी पार्ट इज एक्स लिमिटेड forfeited 300 shares of 100 each। इन दिस ऑल्सो 75 was called up। 10 पर शेयर प्रीमियम था तो आप प्रीमियम को हटा ही दीजिए। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अब देखिए यहाँ पे हटा दीजिए, सॉरी नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि देयर वॉज एरियर ऑन अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट को स्पेशली बोला गया है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम था वो। ठीक है, तो अगर एरियर आया हो किसी सिचुएशन में तो उस कंडीशन में हमको उसको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो देयर वाज नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मीन्स ओनली एप्लीकेशन मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम देम। ओके, सो हाउ मेनी शेयर्स वर देयर? 3,000। Okay, out of these 100 shares were beta again reissued and fully paid up। fully paid up means 100 and 3,100 was transferred to कैपिटल रिजर्व। तो कितने भी रीइश्यू हुए होंगे ये जानना बहुत बड़ी बात है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले तो 100 शेयर का प्रॉफिट निकाल लेंगे, कितना आ रहा है, कैपिटल रिजर्व में कितना गया है आप माइनस कर दीजिएगा, आपके पास जो लॉस हुआ है वो निकल करके आ जाएगा। लॉस को 100 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स पता लग जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फोरफिट करना है, तो फोरफिट के लिए एंट्री पे आते हैं। सो इन फोरफीचर देयर वर बेटा 300 शेयर्स। हाउ मच शेयर्स वर देयर? 300 एंड 75 वॉज कलेक्टेड फ्रॉम देम। तो 75 into 300 it will be 22,500। after that security premium account will be debited and beta in this 300 shares again प्रीमियम कितना है? 10 रुपये है, तो इसलिए 10 आपको लेना पड़ेगा, इसमें 3,000 ही आ जाएगा। ओके, नाउ देयर वाज एरियर ऑन अलॉटमेंट। तो देखिए अगर यहाँ पे एरियर अलॉटमेंट पे नहीं होता और अलॉटमेंट में प्रीमियम भी नहीं होता देन हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। यहाँ पे एरियर अलॉटमेंट पे है तो इसलिए हम इसको डेबिट कर लेंगे। ओके, सो शेयर फर्स्ट कॉल 6,000 3 into 2 and 300 into 39,000 this will be, so to share forfeiture account beta it will be 10,500। how much? 10,500। now 100 वर बेटा रीइश्यूड, तो कितने भी रीइश्यू हैं ये जानना बड़ी बात है ना पहले तो आइए चलते हैं वर्किंग नोट पे। देखिए 300 शेयर्स का प्रॉफिट आया है 10,500, तो 100 शेयर का कितना होगा बेटा? 3,500 रुपये।
अब प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, एक्चुअली होता 3500 चाहिए था, पर कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र हो रहा है बेटा, पहले दे दिया गया 3100 रुपये, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि 400 रुपये आपको लॉस हो गया री इशू का। तो पर शेयर कितना लॉस हुआ, जब 400 रुपये शेयर लॉस हो गया 100 शेयर पे, तो पर शेयर पे कितना लॉस जा रहा है भाई, टोटल 400 का लॉस हो गया, 100 शेयर्स हैं तो 4 रुपीज़ पर शेयर आपको लॉस हो रहा है। तो री इशू प्राइस कितना हो जाएगा बेटा, 100 रुपीज़ टोटल था, 4 आप माइनस कर दीजिए तो 96 आ जाएगा। अब सम ऑफ यू आर थिंकिंग कि वाई सर इज डिवाइडिंग बाई 100, बेटा वी आर हैव कैलकुलेटेड 100 शेयर प्रॉफिट ना, सो दैट इज दिस इज 400 लॉस ऑफ 100 शेयर्स, तो 100 शेयर का लॉस है, तो कितने रुपए लॉस हुआ पर शेयर पे, तो ये डिवाइड करना, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। तो 4 रुपीज़, तो इट मीन्स ऑन 96 इट वॉज री इशूड, सो बैंक अकाउंट डेबिट इन दिस 96 इंटू 100, तो 9600 एंड 4 रुपीज़ आपका लॉस हुआ इशू, 400 एंड शेयर कैपिटल 10,000, और ये तो आपके पास 3100 दे ही रखा है, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व आ ही जाएगा। ओके, so note down this, and in the homework you have to solve question number 45, 46, 47, okay, and 42 I have solved, 43 you have to also solve. Okay, so solve all these questions. If any problem will come, then you can contact us. Thank you students, bye bye, take care.